Hey guys, what's up? English Guru welcomes you on my YouTube channel. Let us start the class with our 3 mantras. First, I can learn English and I will. Second, the more listening, the better speaking. And third, practice is the key. आज मेरा पोहा खाने का बड़ा मन कर रहा है। पोहा इंग्लिश में पोहे को क्या कहते हैं? नहीं पता। साबूदाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यार बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं जिनके नाम मुझे इंग्लिश में नहीं पता। तो चलो सीखते हैं इन वोकैबुलरी सेक्शन। चलिए तो सीखते हैं। जौ को इंग्लिश में हम कहते हैं बार्ले। जौ, बार्ले, जौ, बार्ले। दलिया, दलिया को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉट्स, ग्रॉट्स। दलिया को हम पॉरेज भी बोलते हैं, ग्रॉट्स एंड पॉरेज। कुट्टू के आटे को हम बोलते हैं बकव्हीट, कुट्टू, बकव्हीट। कुट्टू के आटे को बोलते हैं बकव्हीट। चिवड़ा, चिवड़ा को बोला जाता है फ्लेक्ड राइस। चिवड़े को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्ड राइस। मक्का, मक्का, मक्के के एक भुट्टा होता है और मक्के के फूले हुए भुने हुए फूल भी होते हैं। तो जो मक्का होता है उसको हम बोलते हैं मेज़ और मक्के के फूले हुए और भुने हुए फूलों को हम बोलते हैं कॉर्नफ्लेक्स। सो मक्का, मेज़ और मक्के के फूले हुए भुने हुए फूलों को बोलते हैं कॉर्नफ्लेक्स। मुरमुरे, मुरमुरे को हम बोलते हैं पफ्ड राइस। मुरमुरे, पफ्ड राइस। पोहा, पोहा को इंग्लिश में कहते हैं राइस फ्लेक्स। पोहा, राइस फ्लेक्स। साबूदाना, साबूदाना, we call साबूदाना in English sago, sago। सूजी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग घरों में हलवा वगैरह बनाने के लिए, तो सूजी को हम इंग्लिश में कहते हैं सेमोलिना, सेमोलिना। ज्वार, ज्वार को हम इंग्लिश में कहते हैं सोरगम, सोरगम। ज्वार, सोरगम। बाजरा, बाजरा को इंग्लिश में कहते हैं मिलेट, बाजरा, मिलेट। So this is all about the cereals. These are the common name. These are the names of common cereals which we use in our homes. Oh my God, मुझे तो बैंक में एक अकाउंट ओपन करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बैंक में जाने के बाद बैंक वाले इंग्लिश में बात करते हैं। व्हाट टू डू? अगर बैंक में जाना है, अकाउंट ओपन भी कराना है और ऑफिशियल वर्क भी कराने हैं, तो बैंक वालों की तरह मुझे भी इंग्लिश आनी चाहिए। आई नो व्हाट टू आंसर एंड हाउ टू टॉक टू देम। मुझे पता होना चाहिए कि क्या आंसर देना है और उनके साथ कैसे बात करनी है। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स मूव टुवर्ड्स द बैंक। देयर इज अ कन्वर्सेशन एट द बैंक। तो चलिए जानते हैं, अगर हम बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन कराने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, तो हमें वहाँ पे जाके कैसे बातचीत करनी चाहिए। Good morning. Good morning. How can I help you? I would like to get some information about bank account. What would you like to know? What kind of documents do I need for opening an account? You need your original identification card with one photocopy and your job information. I have these documents right now. I would like to open a bank account. Our staff is over there. She can help you in this case. Thanks. Anytime. Yes, ma'am. What can I do for you today? I want to open a bank account. What kind of account would you like to open? Could you please tell me a little bit about bank account?
There are two kinds of accounts, a checking account and a savings account. What is the difference between a checking account and a saving account? A checking account is a basic account. For example, if you open checking account, so you can purchase things online as well as paying bills and buying groceries. Sounds good. We'll provide you a debit card and checkbook too. And what about savings account? Savings account is for saving. You can deposit your money and earn interest. How many transactions can be done in a month with a savings account? Only 6 transactions. But in checking account, you can make daily transactions. A checking account is good for me. I love online shopping. Then, would you like to open a checking account? Yes, please. Please fill out this application form. You need to deposit minimum rupees 1000. I will deposit 2000. I will set up your account right now. After some time, you are all set. Here is your checkbook and your debit card too. Thank you so much. Welcome. इमेजिन एक ब्राइड है विदाउट मेकअप, कैसा लगेगा? मज़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से हमारी जो लैंग्वेज है उसमें इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स ऐसा ही काम करते हैं, डेकोरेट करते हैं लैंग्वेज को, इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स। सो अगर आपको बहुत ही अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है प्लस इम्प्रेसिव भी बोलनी है, लोगों को इम्प्रेस करना है अपने स्पीकिंग वे से, तो आपको इडियम्स और फ्रेजेस आने ज़रूरी हैं। तो चलिए इसी के साथ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास फॉर द idioms and phrases. And today's our first idiom is pull a long face. अब सोचो, suppose किसी का फेस आप ऐसे करके पुल कर दो, लॉन्ग कर दो, कैसा लगेगा? उस बेचारे बंदे को कैसा लगेगा? वो तो परेशान ही हो जाएगा ना, उदास ही हो जाएगा ना। So pull a long face means become sad. Don't pull a long face. Your strawberry cake is here. उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा स्ट्रॉबेरी केक यही है। ओके, नेक्स्ट ग्रीन हैंड। ग्रीन मतलब हरा। ग्रीन हैंड, जब पेड़ ग्रीन होते हैं, जब किसी भी पेड़ का जो तना होता है वो ग्रीन होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कच्चा है। कोई भी फ्रूट अगर वो होता है ग्रीन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कच्चा है ना? तो ग्रीन हैंड मतलब कच्चा हाथ, हरा हाथ, कच्चा हाथ। कच्चा हाथ मीन्स without any experience. So without any experience, a person who has no experience can be called a person with green hand. Next, a horse laugh. सोचो, एक हॉर्स है, उई करके बहुत जोर से अगर हंसने लग जाए तो कैसा लगेगा? नॉट गुड एट ऑल, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे उस घोड़े की बहुत ज़ोर की और हीं करके हंसी हमें अच्छी नहीं लगती, उसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़ोर से हंसते हैं विदाउट एनी रीज़न, है ना, बिना किसी रीज़न के बस ज़ोर से हा 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 करके हंसते रहते हैं। सो दैट काइंड ऑफ लाफ इज कॉल्ड अ हॉर्स laugh. That kind of laugh is called a horse laugh. Next is on the blink. Blink means flickering. Flickering. आप टीवी देख रहे हैं, आपका टीवी फ्लिकर करने लग जाता है, ब्लिंक करने लग जाता है, आपकी लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती है। आप क्या बोलोगे? अरे ये तो ब्लिंक कर रहा है, ये तो मतलब खराब हो गया, है ना? टेक्नीशियन को बुलाओ, मैकेनिक को बुलाओ, ये तो खराब हो गया। So on the blink means out of order. Oh, again this is also an idiom. Out of order is also an idiom. So out of order means on the blink means कोई भी चीज़ जब हमारी ख़राब हो जाती है तो हम कहते हैं the device, this electronic device is on the blink. Next is beat
ब्लैक एंड ब्लू। बीट मतलब पीटना, ब्लैक मतलब काला, एंड ब्लू मीन्स नीला। किसी को इतना जोर जोर से, इतना जोर जोर से, इतना बुरी तरीके से पीटना कि बेचारे का फेस ब्लैक और ब्लू हो जाए, इतने नील पड़ जाए ना उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे, कि मतलब उसको ब्लैक एंड ब्लू करके पीट दो। मतलब बीटिंग मर्सीलेसली। beat black and blue means beating mercilessly. Cross swords, एक sword दूसरी sword. Just suppose, imagine, अगर swords, देखो यहाँ पे sword क्या है, sword में R silent होता है, so ये sword नहीं है, this is swords. Swords R silent है, swords. So cross swords. क्रॉस स्वॉर्ड्स जो होती हैं वो क्रॉस कब होती है, जब एक बंदे के पास स्वॉर्ड, एक बंदे के पास स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड है, और जब वो दोनों क्रॉस करते हैं मतलब लड़ाई करना है ना. सो टू क्वेरल और टू फाइट. सो क्रॉस स्वॉर्ड मीन्स टू क्वेरल और टू फाइट, लड़ाई झगड़ा करना. नेक्स्ट इडियम इज एड फ्यूल टू द फायर. सपोज कहीं पे आग लगी हुई है, एक बंदा जाता है पानी लेने, वो बेचारा गलती से पानी की जगह फ्यूल ले आता है, मतलब डीजल ले आता है, पेट्रोल ले आता है, और आके उसके अंदर डाल देता है. क्या होगा, क्या होगा? आग ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो ऐसा ही कुछ होता है. एड फ्यूल टू द फायर मीन्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी के झगड़े में कुछ ज़्यादा जो है ना कुछ बोल के, कुछ उनको ज़्यादा मोटिवेट करके, मतलब अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और उनके वहाँ पे झगड़े को बढ़ा देते हैं और अपने आप मज़े करते हैं. तो ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब किसी के झगड़े में, झगड़े को और ज़्यादा बढ़ाना, कुछ ऐसी बात कहना, कुछ ऐसा एक्शन करना जिससे उनका झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए. तो ऐड फ्यूल टू द फायर तो क्या है, कुछ भी ऐड करना, कुछ बात कहना, कुछ ऐसी एक्शन करना जिससे जो झगड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ जाए. सो दीज वर द इडियम्स फॉर द टुडे. आई होप ये जो इडियम्स मैंने आप लोगों को कराए हैं वो इस तरीके से कराएं कि आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं. तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ लाइक इट, ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट, ओके, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.